Dear student, I Anita Singh welcome to all to the your YouTube channel Genius Public Inter College. Today I am going to teach to science of class 5th, and today lesson is lesson 4. Your lesson name is float, sink and mixes. In this lesson, we learn about the substance that float, sink and mix in liquids, water as a universal solvent, and solvents other than water, the effect of heat on solubility. Now, this chapter, we starting this chapter. First, we will some questions related to chapter. If we add some sugar to thing and stir it for some time, the sugar disappear. What happened to the sugar? Where does it go? Yes, it go dissolve, and it is dissolved in water. When we add sugar to water or milk, the sugar disappear. It dissolves and the water or milk looks same as before. We can know that the water or milk has sugar in it only when we taste it. In the above example, you can see the diagram. You understood by the diagram and do the activity in your home. Sugar that get dissolved is called the solute. Water that dissolves something is a solvent. Sugar syrup that we get after mixing water and sugar is a solute. Student, when we add the sugar in a water, it dissolves and you get the solution. The solution test of is different from the water. सो अगर स्टूडेंट्स आप एक ग्लास में शुगर को वाटर लेंगे और उसमें शुगर मिक्स करेंगे, तो मिक्स होने के बाद आप देखेंगे शुगर डिज़ोल्व हो गई है, घुल गई है और पूरी तरह से जो वाटर का जो टेस्ट पहले था अब वो चेंज हो चुका है। और उसके बाद जो शुगर है उसको हम लोग क्योंकि पानी में वाटर में मिक्स कर रहे हैं इसलिए उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। जो भी चीज़ें हम वाटर में मिक्स करते हैं उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। बट एवरीथिंग इज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर and the water is called the solvent because some things you dissolve in water, and so after dissolving you get the solution. आप अगर शुगर और वाटर को डिज़ोल्व करेंगे तो घुलने के बाद आपको जो मिलता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। नाउ बट टेस्ट उसका थोड़ा डिफ़र होता है वाटर के कंपेयर में। नाउ the substance can dissolve other substance in them. The substance that get dissolved are called the solute. Means यहाँ पे आपको you can say the definition of the solute. The substance that get dissolved are called solute. वो substance जो dissolve हो जाता है पानी में वाटर में उसको हम लोग solute कहते हैं। When a solute dissolve in a solvent, जब वाटर ये solvent में dissolve होगा तो हमें solution मिलता है। I told you already, and solute is called the solid things that dissolve in water, and water is also called the solvent. You can see the diagram. आप डायग्राम में देख सकते हैं और घर पे कुछ एक्टिविटी भी आप करके देख सकते हैं कि किस तरह से हमको सॉल्यूट और शुगर जिसको कि शुगर को सॉल्यूट कह रहे हैं और वाटर को सॉल्वेंट कह रहे हैं। ट्राई दिस। टेक a disposable plastic glass, fill half of with water, add drop of blue ink or nail used to home and whiten cloth in it. What happened to the water in the plastic glass?
it turns blue. The blue in a Nil dissolves slowly in the water to turn it blue solution. Do all things we add to water get dissolved in it? क्या आप सोचते होंगे जिस तरह से जैसे मैंने आप यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू आप समझ सकते हैं और देख भी रहे हैं डायग्राम में आप कि एक ग्लास में वाटर लिया, उसमें हमने इंक मिलाया तो इंक क्या हुआ, पूरी तरह से मिक्स हो गई है। और इंक जब मिक्स हो जा रही है तो यहाँ पे कहा है कि डू दी ऑल थिंग्स वी ऐड टू वाटर गेट डिजॉल्व इट। क्या सभी चीज़ों को हम वाटर में मिक्स कर सकते हैं? नो, एवरीथिंग इज़ नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट समथिंग इज़ डिजॉल्व इन वाटर. Now try this activity, and by this activity we can understand what is the floats and what is the sink. Take a small piece of paper, put in water. What happen? It remain near the surface. Stirring the water, does anything happen? No, it remain as it. Paper does not dissolve in water, it boats on the surface, and this is the reason why a paper boat also floats. So now floats, you can see the diagram. The boat is floats on the surface of water, and because due to the density. Now put a piece of chalk in a glass of water. What do you see? Student, please do the activity in your home. And does the chalk disappear in water? Does it float on the surface of water? No, it does just goes down and settle at the bottom of the glass. The piece of chalk neither float or nor dissolve in water. It sink in water. Yes, student, the chalk is settle down at the bottom because chalk is heavier than the boat, and it is a solid, and paper boat is a very very small, less weight, so it does not sink. It float on the surface of water, and sink is settled down at the bottom of the glass. Now you can see in the diagram, अगर आप बोट को देखते होंगे, आप बाहर भी जाते होंगे तो आपने बोट देखा होगा, वो स्विम करती रहती है। क्यों? क्योंकि वो ड्यू टू डेंसिटी के कारण होता है ऐसा, और जिसके बारे में आप आगे क्लास में हम पढ़ेंगे। और चॉक कोई हैवी चीज़ अगर लेते हैं तो वो वाटर में नीचे डूब जाती है, जिसको हम लोग सिंक कहते हैं। Substances that dissolve in water are called soluble substance. For example, salt, sugar, ink and so on. Means जो चीज़ पानी में घुल जा रही है उसको हम कहेंगे soluble substance कहते हैं। For example, salt, sugar, ink and so on. And ones that do not dissolve are called insoluble. यानी जो पानी में नहीं घुलता है, such as wood, stone, sand, eraser, pencil and so on. तो now there are two type of substance found in the world, but there are different type of substance found in the world. लेकिन according to solubility, substance are divided into the two kinds. So first is soluble substance and second is insoluble substance. Okay, तो आपके यहाँ पे सब्सटेंस को टू टाइप में बांट दिया गया है। जो पानी में घुलता है उसको हम लोग सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, और जो पानी में नहीं घुलता, जो चीज़ पानी में नहीं घुलती है उसको हम लोग इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। लाइक वाटर, ऑयल इज ऑल्सो अ लिक्विड। कैन वी डिजॉल्व शुगर इन इट? Let us find out. Take 1 glass, add some cooking oil to it. Now add 1 spoon of sugar to it and stir. What do you observe?
Sugar does not dissolve in oil. It remains at the bottom. Substance soluble in water may not be soluble in other liquids. As water can dissolve many substances, it is called the universal solvent. By this activity, student, we understood which things is dissolved in water and which thing is not dissolved in oil. So water is also called the universal solvent. आप देखेंगे कि आपने ऑयल में अगर कुछ चीज़ लिया तो वो मिक्स नहीं होती है, वही मिक्स तभी होगा जब उसको हम हीट करेंगे तब मिक्स हो जाएगा, लेकिन वैसे हम मिक्स नहीं कर सकते हैं. सो इसलिए वाटर में ही कई चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं. सो वाटर इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. व्हाट विल हैपन इफ़ वी कीप ऑन एडिंग एनी सॉल्यूट टू वाटर? लेट अस फाइंड आउट. क्या होगा अगर हम सॉल्यूट में एनी सॉल्यूट, कोई भी मतलब सॉल्यूट में वाटर में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? नाउ डू अंडरस्टैंड बाय दिस एक्टिविटी. टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐड सम सॉल्ट एंड स्ट्रिंग. वंस इट गेट डिजॉल्व, ऐड सम मोर सॉल्ट. कंटिन्यू दिस प्रोसेस. हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और उसमें सॉल्ट और डालेंगे, फिर मिलाते जाएंगे. तो ये प्रोसेस हम लगातार करते जाएंगे. एंड आफ्टर सम टाइम द सॉल्ट यू ऐड विल रिमेन एट द बॉटम एंड विल नॉट डिजॉल्व फर्दर. अब हाफ ग्लास ऑफ वाटर है और उसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है. और एक टाइम में आप देखेंगे कि सॉल्ट जो है वो सेटल डाउन हो गया बॉटम पे, ग्लास पे नीचे बॉटम पे जम गया है. वाई इज़ इट सो? क्यों हुआ है? बिकॉज वाटर गेट फिल्ड विद सॉल्ट. क्योंकि वाटर में जो स्पेस था, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था वाटर में, वो पूरी तरह से फिल हो चुका है. अब सॉल्ट उसमें और ज़्यादा मिक्स नहीं हो सकता है, और तो इट कैन नॉट टेक अप एनी मोर सॉल्ट. और उसमें और ज़्यादा हम सॉल्ट नहीं डाल सकते हैं. इफ़ यू ऐड सम मोर वाटर टू इट एंड स्ट्रिंग, तब ऐसा अगर हम और ज़्यादा मिक्स करना चाहते हैं तो हमें वाटर की क्वांटिटी को मोर करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. और उसमें हम नेक्स्ट आप यू कैन सी दिस डायग्राम. नीचे वाला आप डायग्राम देख सकते हैं कि वाटर का लेवल बढ़ा दिया गया है और फिर उसमें जो सॉल्ट था वो ईज़िली क्या हुआ, जो बॉटम पे जो सॉल्ट था वो ईज़िली डिज़ोल्व हो गया. स्टूडेंट, वी हैव लर्न दैट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. हमने ये सीखा कि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि मैनी थिंग्स आर डिजॉल्व इन वाटर. सो वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. बट इट कैन नॉट डिजॉल्व सब सब्सटेंस, oil, stones and some wall paint and so on. Try this. Take a glass of water. अब वाटर में कुछ चीज़ें तो डिजॉल्व हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिजॉल्व नहीं हो रही हैं. तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी के थ्रू क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि आखिर क्यों नहीं हो रही है, क्या आप कैसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं. टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐड सम कुकिंग ऑयल टू इट. What do you see? एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसमें कुकिंग ऑयल डालिए. आप क्या देखते हैं? द वाटर एंड ऑयल रिमेन सेपरेट. दे डू नॉट मिक्स. द ऑयल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. मीन्स वाटर और ऑयल सेपरेट हैं, वो मिक्स नहीं हुए हैं. उन्होंने अपनी अलग अलग एक ऊपर लेयर बना ली है और ऑयल ऊपर सरफेस पे है और वाटर नीचे है. हैव यू ever seen painter washing and cleaning their brushes? Do they wash it in water? No. आपने पेंटर और को देखा होगा कि वो अपने ब्रश या कैसे साफ़ करता होगा, वो वाटर से साफ़ नहीं कर पाता है. तो नो. समटाइम द पेंट दे यूज डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सो दे यूज अ सॉल्वेंट लाइक केरोसिन. तब वो यहाँ पे वाटर जिसको कि सॉल्वेंट कह रहे हैं और केरोसिन भी वाटर है, यानी एवरी लिक्विड इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट.
such as kerosene is also called the solvent, petrol is also called the solvent, and milk and juice is also called the solvent. But water is called the universal solvent because many things is dissolved in the water. So petrol to wash away the paint from the brushes. Have you ever seen your mother giving oil or grease stained cloth for dry cleaning? आपने माँ को भी देखा होगा अपने कि मम्मियाँ कपड़ों को ग्रीस करने के लिए या ड्राई करने के लिए देती हैं, तो उसको दिस इज़ द ऑयल फ्रॉम द स्टेन इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर. Some other solvent like petrol is used for dry cleaning के लिए यूज़ करते हैं. Oil from the stain get dissolved in it and cloth get clean. Next, have you ever wondered why the soft drink fridge, when we open the lid, these soft drinks have carbon dioxide dissolved in water under pressure. When we open a bottle or a can of soft drinks, that carbon dioxide gets dissolved in the drink, rushes out. This causes the fizz. आपने अक्सर घर में भी अपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को जब इसको शेक करने के बाद जब ओपन करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स देखते हैं बाहर निकल आती है और ऐसे कुछ फिज की जैसी आवाज़ आती है. तो क्यों? क्योंकि बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स इन योर कोल्ड ड्रिंक. ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव लर्न दैट वी कैन नॉट डिजॉल्व समथिंग इन वाटर बियॉन्ड आ लिमिट. आपने ये सीखा और ये आपने समझा कि वी कैन नॉट डिजॉल्व समथिंग इन वाटर बियॉन्ड अ लिमिट. एक लिमिट वाटर की एक लिमिट के बाद अगर उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ों को क्वांटिटी को मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होती है. जैसे भी आगे एक्टिविटी में हमने करा भी था. लेट अस डू एन एक्टिविटी अंडरस्टैंड वाई. सो स्टूडेंट, यू डू द एक्टिविटी इन योर होम and I hope you try this activity in your home and understand easily. Take 3 glass. Take cold water in the first glass, normal water in the second glass, and hot water in the third one. Add 1 spoon of sugar to each of them. Stir and observe the changes. The sugar in hot water disappears first. The normal water takes more time. Cold water takes the longest. In all 3 glasses, the solvent and the solute are the same. Then why is there a difference? The speed of dissolving. आप अगर एक्टिविटी ऐसे करके देखेंगे तो जो कोल्ड वाटर में क्या था, हॉट वाटर डिसअपियर. भाई गर्म पानी में तो जल्दी घुल गया और जो नॉर्मल वाटर था उसमें थोड़ा टाइम लगा और कोल्ड वाटर में टाइम ज़्यादा लग रहा है डिज़ोल्व होने में. द डिफरेंस इज़ ड्यू टू द हीट. ओके स्टूडेंट, व्हेन वाटर इज हीटेड, द हीट एनर्जी कॉजेज द पार्टिकल्स to start moving faster. Fast movement of the particles causes them to dissolve faster. Heating solvent like water or milk allows us to dissolve more quantity of a solute in it. मीन्स हीटिंग जो सॉल्वेंट होता है लाइक जैसे वाटर, गर्म दूध ले लें, गर्म पानी ले लें, तो उसमें अगर हम कोई चीज़ जल्दी मिलाते हैं तो जल्दी मिक्स हो जाती है. So now student, your chapter is finished. Thank you for your watching. I hope you understand this chapter. इसलिए मैंने आप लोग को चैप्टर समझाने के लिए मैंने इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि हमारा फ्लोट्स क्या होता है और सिंक क्या होता है और सॉल्यूट क्या है. व्हाट इज़ द सॉल्यूट, व्हाट इज़ सॉल्वेंट, व्हाट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंक. And so student, I hope you understand. Thank you.